So hello everyone, you are welcome to Wireless Era and obviously आपने thumbnail देखा होगा तो this video is dedicated for Agra University and इसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं. So first of all, before starting the review of this university, I would like to inform you that कि अभी तक हमने जो यूपी में जितने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं लाइक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उनके हमने रिव्यू ऑलरेडी अपने वीडियो पे अपलोड किए हैं. तो प्लीज चेक आउट मींस प्लेलिस्ट मींस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज हमने और भी मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं लाइक ट्रिपल एमयूटी बीआईटी झांसी एंड महात्मा ज्योतिबा फुले मतलब मोस्ट ऑफ दी मींस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज अभी हम एज ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक एंड कमेंट्स वेयर कमिंग की अभी एसबीटीयू एंड देयर आर सो मेनी कमेंट्स आर कमिंग एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू means make video of other university too. So for that if I talk about this video then already at starting में हमने बताया कि ये जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम जो आपका आगरा यूनिवर्सिटी है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं. So for that Taniska is from civil engineering. She is in final year and she just joined Wireless Era. First of all I would like to thank her. She joined her just in months to just inform their juniors in the aspect of just helping the juniors. So hi Taniska, how are you? Hello Neeraj, I'm fine and thank Okay. you for providing me this platform for helping our Yeah. juniors. Okay. So first of all, I would like to know some means point of view of means just a kind of introduction of your Agra University. Agra University is a very popular university as we all know that there are so many alumni from the Dr. Bhimrao Ambedkar University like APJ Mhm. Abdul Kalam. So it Okay. is famous for it. Okay. So it's a university. So before means going for deep, I would means कि जितने भी वीडियो होते हैं it's all about for BTech engineering student. So सबसे पहले मैं जानता हूँ your university is dedicated for BTech means engineering or other courses also going on. Other courses are also going on as we all know BA, BSc, Commerce Science Hmm. from Home Science. Hmm. All branches Hmm. are eligible in Dr. Bhimrao Ambedkar University. Okay. So first of all, I would like to know means what the exact location of your Dr. Bhimrao Medical University. I mean, it's how much far and किस स्टेशन से nearby है your Agra University? It is not nearby any station, but it is in middle of your city place. Means ओल्ड आगरा सिटी के ये सेंटर में है और Mhm. आपको इजीली इसके आसपास सब चीजें मिल जाएंगी. मीन्स फूड स्टॉल, स्टेशनरी प्लेसेस ऑल आर नियर बाय एंड लोकेशन काफी Mhm. अच्छी है. ज्यादा मतलब आउटसाइड एरिया में नहीं है जैसे आरईसीज होते Okay. हैं वैसे नहीं है. Mhm. Okay. So now I would like to know about your university. Like means जैसे how many branches in there? देयर आर 5 ब्रांचेस इन माय यूनिवर्सिटी कैंपस बट इसमें ना जैसे एक कैंपस होता है यूनिवर्सिटी के अंदर मेन कैंपस में हमारा वो बिल्डिंग नहीं है. आईआईटी Mhm. कैंपस अलग है. इसका आईआईटी खंडारी कैंपस से आपको लोकेशन मिल जाएगी Mhm. और इसमें 5 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट Mhm. सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स Mhm. एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग. ओके. सो मतलब इसमें फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो कि इसमें एडमिशन किस थ्रू से होते हैं. जैसे हम आरएसएस की बात करें या ट्रिपल एमयूटी अदर यूनिवर्सिटी लाइक बीआईटी झांसी एंड ऑल, इसमें जेई मेंस के थ्रू जो लीनियर्स होते हैं उनका एडमिशन होता है. सो व्हाट अबाउट योर यूनिवर्सिटी? इट इज ऑल्सो जेई मेंस के थ्रू हो जाएगा. सीयूटी के थ्रू लेटरल एंट्री भी है हम्म. और आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो. Okay, so what about the fee structure? Means obviously this is university. It's I think not affiliated to any other means IKTU. It's means autonomous. I can say autonomous. No, it's own university, right? राइट. बट एकेटीयू से मीन्स एफिलिएशन में आती है यूनिवर्सिटी. एकेटीयू से काफी सारी यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है तो एफिलिएशन में Mhm. आती है बट ये यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चलती है तो Okay, एकेटीयू so से कोई रिलेशन नहीं है. okay, we can say autonomous university, right? राइट. ओके. सो नाउ जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पूछा व्हाट अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ योर यूनिवर्सिटी? फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको जब आओगे आप तो बीटेक के लिए तो 70,000 है. मीन सेमेस्टर वाइज फीस जाती है 35,000. वही आपका है. ओके. एंड व्हाट अबाउट हॉस्टल एंड ऑल? हाउ मेनी हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स देयर? देयर इज नो हॉस्टल फॉर बॉयज. ओनली गर्ल्स हॉस्टल आर प्रोवाइडेड ओह. सो और मींस ओनली वन टू हॉस्टल हैं गर्ल्स के लिए. वन इज फ्रॉम समाज कल्याण एंड वन इज फ्रॉम होम साइंस हॉस्टल. मीन्स जिसमें होम साइंस की भी गर्ल्स रहती हैं और आपकी बीटेक की गर्ल्स भी रहेगी.
ओके सो एज यू नो कि मतलब ऐसा आपने बताया कि यूनिवर्सिटी इज नॉट डेडिकेटेड फॉर ओनली बीटेक, इट्स मींस अदर कोर्सेज आल्सो गोइंग ऑन लाइक बीए एंड बीएससी। सो लाइक जो भी यूनिवर्सिटी होती हैं, जहाँ बीए बीएससी होता है, मोस्टली हम सुनते हैं कि छात्र नेता का चुनाव होते हैं, एंड ये यूनिवर्सिटी जो होती है मोस्टली मींस जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो मतलब क्लोज होती हैं, तो इट्स ऑल्सो इन यूनिवर्सिटी लाइक दैट। क्लोज तो नहीं होती फेस्टिवल, बट हाँ छात्र नेता के इलेक्शंस वगैरह होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, बट इससे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग इन्वॉल्व हम्म नहीं होते हैं, बाकी सारे हम्म डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे होम साइंस हो गया, बीएससी हो गया, वो हम्म लोग इसमें इन्वॉल्व हम्म, होते हैं। और अच्छा। रही बात आपकी हॉलीडेज की, तो उसमें काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आप इंक्लूड हो सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मीन्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है हमारा, तो हम्म इसमें होम साइंस का कोई रिलेशन नहीं है। बट हाँ काफ़ी सारे हम्म यहाँ पे सिंगर्स वगैरह भी आते हैं, काफ़ी मतलब हम्म जो कल्चरल इवेंट्स हम्म होते हैं उसके लिए काफ़ी डेडिकेशन है हमारी यूनिवर्सिटी की। Hmm. Okay. So now I would like to know ki means this is a university. So I would like to know ki what about academic means how the faculty is there means like if I talk about government college means RSs then 75% attendance is compulsory. So is it also like that in your university? यस 75 अटेंडेंस कंपलसरी होती है, क्लासेस भी वर्किंग ऑनगोइंग होती हैं। Mm-hmm. Okay. आपको लेना And ज़रूरी होता है, एंड पीटीज़ का ये है कि आपको 3 पीटीज़ में से 2 पीटीज़ देने ही हैं, एंड क्लासेस भी mm-hmm. आपको लेनी ही है, मीन्स ज़्यादा नहीं तो Mm-hmm. एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत ले लो। मीन्स 1 वीक में Okay. 2 टाइम्स या 3 Mm-hmm. टाइम्स। ओके सो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है कोई भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी कॉलेज में या आइदर प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो उनका फर्स्ट मीन्स अप्रोच होता है टू नो how the placement is there. So is placements companies coming for BTech or just a kind of degree we are taking? प्लेसमेंट्स का ज़्यादातर तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ट्राई करें, वही बेटर रहेगा। प्लेसमेंट हम्म, का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ए प्लस ग्रेड के अंडर आई है। तो अच्छा अभी अच्छा। हो रहा है कि हमारी प्लेसमेंट्स आ सकती हैं काफ़ी अच्छी, पर दिस टाइम हमारे हम्म सीनियर्स जो थे उनको भी ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली है। अप्रॉक्स आप 2 लाख पर ईयर या 3 लाख पर ईयर के जाएँगे आप लोग, हम्म, तो इससे अच्छा आप ऑफ ओके कैंपस ट्राई करिए। exactly. So now I would like to know means what about extra curriculum, and first of all I would like to know ki, is there BTech course or BE in your university? Because as far as I know, you are doing BE, not BTech, Yes, right? BE. There is only So, BE, no BTech hmm, is there. BE means okay. Bachelor of Engineering, not an Hmm. Bachelor of Technology. So, do you know what is the main major difference between BE and BTech? Yes, there's means आपको theoretical knowledge ज़्यादा मिलेगी हमारे बीटेक में, बीई में, और प्रैक्टिकल Hmm. नॉलेज आपको बीटेक में ज़्यादा मिलेगी। सो Okay. सिलेबस चेंज है, काफ़ी Hmm. काफ़ी चेंज होता है बीई में बीटेक में। ओके सो मतलब जो हम गेट उट क्या गेट का मतलब कोई दिक्कत होता है लाइक गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव No, एग्जाम वेयर बीटेक? हाँ। BE BTech are equivalent degrees. If you are doing BTech and हम्म BE, both are same. Equivalent degrees ओके। हैं, बस सिलेबस हम्म चेंज होता है, बट आपका हम्म इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपकी बीटेक स्टूडेंट्स को मिलेंगी, वही अपॉर्चुनिटीज आपको बीई स्टूडेंट्स एज में मिलेंगी। Okay, so now I would like to know about your university. How many extra curriculum is there? Means वहाँ पे fest and clubs are also there. यस देयर आर क्लब्स एंड देयर आर मीन्स ऐसे पर्टिकुलर क्लब्स नहीं बनते हैं, बट हम्म बास्केटबॉल और काफ़ी सारे हम्म मीन्स हैकेथॉन्स होते हैं सीएस के लिए, वो वाले हम्म क्लब्स हम्म बनते हैं। हम्म। Okay. मीन्स So finally at last, I would like to know. Obviously, आपने you are from lateral entry, I know. So obviously आपने 2 साल अपने कॉलेज में मतलब इस यूनिवर्सिटी में दिया, तो obviously कुछ तो मेरिट एंड कुछ डीमेरिट पता चले ही होंगे. So as compare of those university like APJ Abdul Kalam, Triple MUT or BIT झांसी, ये जो मतलब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है, this is dedicated for only and only BTech. But means engineering, I can say only for engineering. But your means university is not only dedicated for engineering, they are providing other course also. So इनसे कंपेयर करने से आपका यूनिवर्सिटी में क्या आपको अभी तक लगा कि इट्स मेरिट एंड इट्स डीमेरिट प्लीज? बस तो आपका जैसे यूनिवर्सिटी लेवल काफ़ी वाइड लेवल होता है, कॉलेज लेवल नहीं है, तो आप लोग एग्जैक्टली। काफ़ी सारी ब्रांचेस से भी कनेक्शन प्रोवाइड होता है। आप कनेक्ट होते हो काफ़ी वाइड एरिया में, और सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे पढ़ के फोकस कर सकते हो गेट और ईएससी में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर गेट, ईएससी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और उनको एग्जैक्टली। अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है। आपको सिलेबस कवर करने के बाद में, एज मैं आई एम लेटर एंट्री, तो हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे डिप्लोमा के ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, वही आपको वाइड लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़ना होता है।
तो हम्म, एडवांस लेवल ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हम्म, मीडियम है, सो आपको टाइम भी मिल जाएगा अगर आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक प्लस हम्म, पॉइंट है हमारी यूनिवर्सिटी का कि आप कोई भी अदर एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको टाइम लगेगा। ओके, एंड सेकंड, आप सो कोई भी मीन्स सेमिनार्स वगैरह में लेते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी। सेमिनार्स, हम्म, वर्कशॉप काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ पर, तो आप हम्म, उनमें पार्टिसिपेट करोगे तो ज़्यादातर आपको उस लेवल का और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे नर्वसनेस होती है वो सब आपकी बेस्ट होगी हमारी यूनिवर्सिटी में। ओके। सो व्हाट द डीमेरिट, बिकॉज मेरिट तो सभी कॉलेज में हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन हाँ, डीमेरिट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज वन हु आर जस्ट मीन्स जो एडमिशन लेने इस बार लेने के लिए मतलब जस्ट अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली मीन्स हम कभी ना कभी हम भी इसी फेज में थे व्हेन वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर कॉलेज, विच कॉलेज इज बेस्ट एंड विच कॉलेज इज नॉट बेस्ट। तो इफ आई टॉक अबाउट मोस्टली देन यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं लाइक कॉलेज के, तो उसमें मेरिट एंड डीमेरिट इज नॉट, दे आर जस्ट गिविंग। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ऐसे भी वीडियोस होने चाहिए कि एक ऐसे चैनल हो डेडिकेटेड जिसपे हर एक जो भी कॉलेज है यूपी में या जो भी यूनिवर्सिटी, उनके मेरिट डीमेरिट और वहाँ के जो स्टूडेंट है लाइक दोज हु आर स्टडिंग देयर, तो उनसे अच्छा कोई बेटर बता नहीं पाएगा। सो फॉर दैट ऑब्वियसली व्हाट द डीमेरिट अकॉर्डिंग टू यू, आपको अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी में लगा कि इट्स मींस एज कंपेयर टू एगेटिव और अदर यूनिवर्सिटी, या आपके यूनिवर्सिटी में भी हो तो ऑब्वियसली इट्स बेटर देन मींस व्हाट यू आर जस्ट राइट नाउ। डीमेरिट फर्स्ट तो यही है कि आपको मीन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के लिए तो आपको बेस्ट है, बट यहाँ पे बॉयज हॉस्टल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डीमेरिट है आपको एग्जैक्टली। रहने के लिए प्रॉब्लम रहेगी, खाने का थोड़ा इशू हो सकता है फूड का। हाँ। तो और थर्ड वन ये है कि सबसे ज़्यादा आगरा का पानी, वाटर सबसे ज़्यादा डीमेरिट में आता है क्योंकि यहाँ का ओह वाटर सूट व्हाट नहीं हैपेंड। करता है इतनी जल्दी। हाँ, वाटर सूट अच्छा नहीं अच्छा। करता है इतनी जल्दी आगरा का। एंड ओके। इसकी सिटी बाकी तो अच्छा है, बट हम्म। यस यही है प्लीज। कि आपको रहने में प्रॉब्लम होगी। Okay. आप लोग Okay. 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 So at last, I would like to just know if you just want to give the any kind of feedback or suggestion. Those who are just means watching this video as your junior, so please carry on. जूनियर्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो फोकस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में करना ज़्यादातर, और Exactly. लाइब्रेरी ज्वाइन करना अगर आपको Hmm. सुटेबल लगे तो, क्योंकि Hmm. लाइब्रेरी में ज्वाइन करने के बाद भी बहुत लोग होते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को अगर Exactly. वाईफाई वगैरह करना हो तो हमारी कॉलेज Hmm. लाइब्रेरी यूज़ ना करना, सेंट्रल लाइब्रेरी है Hmm. वो उसमें उसे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और आपको Okay. अगर ये सीएसई और गेट की प्रिपरेशन करनी है तो बुक्स हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं, और सेंट्रल लाइब्रेरी आप Hmm. यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, इसमें मेन एडवांटेज ये Hmm. भी है। यूनिवर्सिटी की Okay. मेन लाइब्रेरी भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड Okay. Okay. All right. At last, I would like to thanks once again for just giving your positive review and feedback to your juniors. So yeah, thank you, Taniska, for your feedback.